Let's start. In the last two session, particularly it focused the light on the homeopathic case taking, especially the how to arrive at the genetic constitutional remedy. That is the most important part and the new part, and the part, if you understand it properly, then you can crack or you can solve the each and every case, even the highly pathological cases, even the cancer, even you can the psychotic, syphilitic, psychosyphilitic, all types of cases, if you know the understanding of the how to find out the genetic constitutional remedy. Because when we talk about the genetic, that means the inherited characteristic, which we called it as the dispositional features. And in order to understand the disposition of any person, we have to always go the longitudinal study. We have need to do the longitudinal study. The cross sectional study doesn't gives you the full understanding of the disposition. By cross sectional study you can come to the conclusion that the mental state of the patient, you can understand the mental state of the patient, but you can't understand the disposition of the patient. For that, the evolution of the person, how he or she evolve from time to time under the circumstances, under the stress, in a different epoch, that we have to understand through the case taking, right? So in arriving the genetic constitutional remedy, we see there is a mental makeup, physical makeup, general makeup, and the defense makeup, that means the MISM. Right now come to the specific part of our LES4, that is the psychiatric case taking. Right, the most of the part that we have learned in the last two session is applicable, it is not something highly different. Right, what we observe, right, that we here we have to utilize that knowledge itself. It is not a different, right, but some new features are there that needs to be pay attention so that we can make a precise psychiatric diagnosis. Right, because there are the different conditions that gives rise to a that comes under the classification of psychiatric disorder. According to the DSM-4, according to the DSM-5, there are the condition where there is a childhood psychiatric conditions are there, deliriums condition are there, substance abuse, substance related disorders are there, psychotic disorder like a schizophrenia, which is the most dangerous, we can call it as a, in the psychiatric whole psychiatric disorder may. Then mood disorder like a depression, anxiety disorder like general anxiety disorder, panic disorder, phobia, all. Somatoform, somatization, factitious, dissociative disorder, sexual gender identity disorder, eating disorder, sleep disorder, impulse control, and personality disorder. All these are the common diseases that included in the psychiatry. We focus on the most common or most important, which we have seen in our OPD practices. Not all the diseases are the common. So when we discuss about the psychiatry, always we have to understand the whole psychiatry is divided into the two. This is why this is important, this to understand the limitation and scope of homeopathy, right? And understand the psychiatric disorder, how it differ, right? The difference between the neurosis and psychosis, because the broad, this is the broad classification of psychiatric diseases. One is the neurosis, second is the psychosis. Now neurosis, what define the neurosis and what define the psychosis? Neurosis means the disorder where there is a mental or psychological disturbances is there, but patient has orientation to time, place, person, and patient is stick to the reality. Patient is stick to the reality. Patient understand and know the things, the surrounding, and what is going to happen in our surrounding, right? In neurosis, but in contrast,
if you see the psychotic patient, psychosis patient, that is the schizophrenia like disorder, right? Then you can see there is a irrelevant behavior. The behavior is irrelevant. You can't understand their behavior, their thoughts. That includes the delusion, hallucination, right? In irrelevant talk which is not relevant to the what is going, right? So these peoples are not connected to the surrounding. They are their own world. तो जो एक्चुअल साइकेट्री में जो पागल बोलते हैं हम कि पागल है करके, या पगला है, या मैड है, जो एक्चुअल बोलते हैं कि जब ये मैडनेस है या पागलपन है, तो दिस कम्स अंडर द साइकोसिस वेयर देयर इज अ पेशेंट इज नॉट in touch with the reality. They are in a different world. Now, as far as the scope and limitation is concerned, it is very, matlab, we can handle the neurotic cases easily. Not every case, but we can handle. Now, what type of neurotic cases are there? Anxiety disorder are comes under the neurotic disorder. Depressions, eating disorder, impulse control disorder, conversion disorder, factitious, all most of the diseases, almost most of the diseases comes under the neurosis. And the psychosis may the delusion, the related delusional disorder, schizophrenia, where there is a delusion, hallucination, this component is predominant, where the touch to reality is lost. Such a diseases comes under the psychosis. Now, such a diseases are quite difficult to handle and difficult to treat, even with the allopathic mode of treatment and even with the homeopathic mode of treatment. Now, there are the certain points why the psychosis is difficult to treat. One, that patient lost the reality, they are in the highly syphilitic state, the impact or the conflict that occurred is highly impactive, so it impact on such a way that there is a distortion of the thought in the form of delusion, hallucination, imagination, like that. Now, when you treat or when you come in contact with the cases who having the schizophrenia or psychotic disorder, it is very difficult to understand the evolution of the disease, how it started. Then again, it is very difficult to rely on the patient information. You can't rely on the patient information because whatever he or she is talking, telling to you, narrating to you is their his own imagination, not a real one. So because we don't get the conflict, we don't get the causation most of the time, how this person goes into the psychotic state or psychotic disorder or schizophrenia like disorders. That's why. And again, when we interact with the accompanied person or the family member, they know the partial things. Whatever they know the things, but partially or in a patchy manner. That's why the coming conclusion is something, sometimes it is difficult. But again, if we have the keen observation and if you are keen in the diagnostic evaluation, then even it is not impossible, but it is possible, but quite difficult. We can even manage the psychotic cases. But here the observation part and understanding the patient's behavior is very important, right? So गोइंग फर्दर, हम जब होम्योपैथिक केस टेकिंग लेते हैं तो कभी कभी हम स्टिक हो जाते हैं, एक फिक्स हो जाते हैं होम्योपैथिक केस टेकिंग के प्रोफार्मा को, तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम मूड को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, पेशेंट को हम फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम अफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइकेट्रिक केस टेकिंग, इवन इन ईच एंड एवरी। इसमें कुछ पॉइंट ऐसा है साइकेट्रिक केस टेकिंग में जो हमको एक्स्ट्रा में ऑब्जर्व करना पड़ता है या इवेल्युएट करना पड़ता है। सो सी द फेस, मूड कैसा है उसका, अफेक्ट कैसा है, शी इज वीपिंग ऑन आस्किंग समथिंग, क्या होने लगी, आई कांटेक्ट कैसा है ना?
एक्साइटेड लग रही है, जॉयफुल लग रही है, चीयरफुल लग रही है, सैड लग रही है, सैडनेस दिख रहा है फेस पे, वीपिंग है ना, ग्रीफ इंटरनली है कि इंटरनल ग्रीफ हो सकता है। तो यू मस्ट बी इंटरप्रेट अकॉर्डिंगली, राइट? We will go what is the effect, what is the mood, just this is the just a अच्छा लगता है वो सब याद करके। short video so that you can understand it deeply। ये देख मन नहीं फिजिकल ऐसे बताऊंगा ना, फिर आप में उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू द वीडियो। आपको फिर से इवेल्युएट हमें हर करना समय चाहूंगा ऐसे कि फील होता है कि रात आधा रहता डिप्रेशन के केसेस में ये कैसे इवेल्युएट करते हैं एमएससी को। एमएससी मीन्स मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, राइट? व्हाट वी डू in identifying the physical diagnosis, we go for the history, right? Na? Present history, history of present complaint, then we do the a physical examination, then investigation, and then come to the proper conclusion or diagnosis. In psychiatric cases, the role of investigation is less. The role of physical examination is less. है ना? The role of physical examination and investigation is less, but the importance of proper communication or case taking, जो one to one case taking होता है, that is more important. And in order to understand the diagnosis, the special design parameter is there, which is called as the mental status examination. It is the where we can assess the mental status of the patient so that we come to the particular diagnosis. Now, in each and every case, the goal of case taking, whether it is a um, homeopathic point of view or psychiatric diagnostic point of view, most important thing, I'm going certain detail, though I feel you know these things, but when you go in detail and understand the each and every term, the importance of each and every term, so that you can evaluate accordingly. So I will identifying data when the patient enters into the your chamber, your observation and your case taking start there. No, we know this. But when ask the preliminary information, I think the most of the doctor avoid to ask the preliminary information in detail. They only just write down the name, age, sex, and address. Where, right? Is it the sufficient to understand the patient? Is it to sufficient to evaluate the patient condition? The name of the patient, age of the patient, sex of the patient, and address. Again, more than this, if you understand, more than this, most important is the occupation. Occupation, whether the patient is before occupation, important is the education of the patient. Whether he is illiterate, literacy kitna hai, whether it is a highly educated, right? So that you can judge ki how you want to talk, in what manner you want to explain the patient the disease diagnosis or the other processes. एजुकेशन के बाद उसमें ऑक्यूपेशन क्या है, बिकॉज सम डिसीजेस आर ऑक्यूपेशनल हैजर्डस डिसीजेस रहते हैं विच इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, whether it is a physical or the mental, might be the occupation is that which have the lot of mental stress. If you particularly understand that patient is in the police department, patient is in the bank, or patient is in the that department where need a lot of mental stress domination from the seniors and all that, right? There was a one case yesterday I defined of allergic rhinitis then turns to bronchial asthma, where there was a lot of pressure from the seniors, the boss, the account department, where that he has to leave the job, he has to resign the job, because and the complaints start after that. Barabar hai? Some complaints start after that. So we can make a cause effect relationship when we know the this particular thing. So education, then occupation, then the marital status. Most of the time we
we forget to ask the marital status. We don't mention there. We have to mention the marital status of the patient, whether he or she is married or not. Again, the thing is not stop here. Just asking the marital status is not sufficient. Ask the spouse, age, and occupation. See, spouse or the partner age is again the important to understand the dynamic of the patient. Right now, see, there is a one lady who is a 25 to 28 years old, 28 years old, 25, 26 years old. And when you ask about the spouse or the partner or husband, and his age is 40, around the 40, who got just married recently, that say 2 to 3 years back. And if we evaluate the patient complaint or whatever the disease is there, start after the marriage. Now, when you see there is a vast gap in the age from 26 to 40, then you can understand the dynamic that happened in the home or the house or in the family. The person who is the 40, the person who is 38 is the highly matured. Might be he is the this is the second wife of that man, or might be a first wife. And if it is, even if it is the first wife, the age has gives you the different thought process. मतलब उसका maturation of thought and इसका maturation of thought is different. So what she expecting from the husband is different from what husband expecting from her. So here the need is unfulfilled, whether it is a emotional, whether it is a physical, sexual. And when the need is getting hampered, whether the need is getting disturbed, is not unfulfilled, become unfulfilled, then the problems start and the disease start. That's why it is very important to understand it gives the clue. This preliminary information gives clue to the how we have to evaluate the life space. और this gives clue कि ये पेशेंट में प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ पे है. इसके इंटरपर्सनल आईपीआर में प्रॉब्लम है, इसके हस्बैंड के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, सासू माँ में है, ससुरे में है, या कहाँ पे, या जॉब में है. Right? If someone says कि there is he is changing the job frequently because ये इसका behavior अच्छा नहीं, इसका behavior अच्छा नहीं, so you can come to the कि ये क्या problem है कि इसको सबके behavior में problem नजर आता है. So what is in the patient that compel him or her to resign from the job? Right? So occupation, the marital status, again the issue. If the couple is married and he or she having the no issue, if it is the senior citizen, if it is the recently married or marriage since the 5 years, 10 years and having the no issue, then again you must understand that there must be a problem when there is a having no issue. तो मेंटल स्टेट उसका कैसा होना चाहिए वो इवेल्युएट करना पड़ेगा. बराबर नहीं है. अगेन द फैमिली, वेदर इट इज अ कोर सिंगल, ये कपल ही रहता है, उसकी फैमिली है कि पूरा बड़ा फैमिली है, मदर इन लॉ भी है, फादर इन लॉ भी है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऑल दिस है ना. तो सिंगल फैमिली में है कि एकदम बड़े फैमिली में है, दैट इज डिफरेंट, आउटलुक डिफरेंट. सो हाउ ही और शी इज एडजस्ट विद दैट family member or group of members, that then you can evaluate accordingly. Right? Again, the income, if the person is there, male person is there, you can ask the income, ask the family members. If the wife is there, ask the husband income. Again, you can evaluate the financial status. Is again the important to evaluate ki is there any problem in their daily activity, whether the primary जो need होती है वो fulfill हो नहीं रही है, नहीं, जो खाने का है, जो पीने का है, ये वो fulfill हो रही कि नहीं. Is there any financial crisis or anxiety or cares worries, that you can evaluate, depends on that. So the preliminary information, then we comes to the chief complaint. Now always say, most of the people have the habit to interpret the patient
narration into his or her own terms or own mental symptoms. बरोबर है, into their own language we can say, है ना. I always prefer to write the information in the patient own words. अगर पेशेंट मराठी में बता रहे तो मराठी में ही लिखूंगा, हिंदी में बता रहे या इंग्लिश में बता रहे accordingly. If someone has the habit that सब सुन लेते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करके और एक रूब्रिक लिखते हैं या मेंटल सिम्टम्स लिखते हैं, दैट मीन्स द पेशेंट, अगर पेशेंट कुछ बोल रहा है तो उसका इंटरप्रिटेशन की डिल्यूजन, शी इज पुअर और ही इज फीलिंग पुअर, तो क्यों है. सो हमको व्हाइल केस टेकिंग इतना इंटरप्रिटेशन नहीं करना है. वी हैव टू जस्ट राइट डाउन द data in most of the time in the patient words and avoid to interpret the interpret the things directly, or don't write the interpretation directly. Instead, write the data, and then afterwards, once you finish the case, then do the processing or evaluation of the case. Right. The reason for consultation, again, this is very important. Most of the time we have seen that the patient comes to comes with particular complaint. The doctors will have the head and all this. For example, there is one case of psoriasis. She lady that brought by the son, who is a doctor, allopathic anesthetist, and he brought his mother with the complaint of psoriasis कि डॉक्टर साहब ये psoriasis है, ठीक नहीं हो रहा है, कितना स्टेरॉइड्स देंगे, स्टेरॉइड्स से डर लगता है, मम्मी भी एलोपैथिक मेडिसिन लेती नहीं है. बट व्हेन वी goes and start interview and understanding the mood, the affect, the thought content, and her conditions, then I come to the conclusion, more than this psoriasis, the patient is in the severe depression. She is in the she is the major case of major depressive disorder, which is very hampering his life and having the suicidal thoughts in it. So if the person having the severe depression with the suicidal thoughts, suicidal ideation, don't want to live, loathing of life, no one is here, I am in the grief of my husband. So what is more important? We need to evaluate that, we need to explain to the patient and to the accompanied person, to the family member, that the patient is in the state of this and you have to take care of her. Because most of the patient, the suicidal tendency और suicidal के cases जो होते हैं in whole psychiatry depression में ज्यादा पाए जाते हैं. जो rate of जो cases का है suicide का, actual suicide का, the depression is among the most important disorder where the suicide occur very in a high rate, 15 to 20%. So that's why the reason for consultation, किसने भेजा है, किसने रेफर किया, खुद आया है कि जबरदस्ती से आया है, that we have to evaluate. Then history of present, है ना, सिर्फ just noting the presenting complaint is not suffice. Might be these complaints caused because of some suppression, because few years back may have some other problem, like the patient comes to you with the asthma, and if you go retrospectively, then you get the patient complaints start with the sneezing, then coryza like allergic rhinitis, and gradually then expectoration, then shortness of breath. मतलब complaint start हुआ सोरा to psychosis going into the psychosyphilitic state. तो इवोल्यूशन ऑफ डिसीज आपको समझेगा, और कुछ सप्रेशन हुआ है कुछ, है ना, उसमें उसमें भी आपको इवेल्युएट करते आएगा. तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल हिस्ट्री, उसमें मेडिकेशन कुछ लिया है क्या, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस even while treating the psychiatric cases or other cases. We need to understand what type of medication the patient is already taking and from whom. Most of the time what happens, patient comes to you with the physical complaint like the acidity,
like a chest pain, but he or she is already taking the psychiatric treatment. And sometimes the people hiding that. So we have to evaluate deeply and skillfully so that he can narrate ki we have this complaint and I'm taking the psychiatric treatment for this. Sometimes we see in the patient is quite drowsy, patient is having the difficulty in narrating the symptoms properly, right? Seems to be very drowsy, dull, and we make it in the totality the patient is drowsy, dizzy, and we come to the conclusion might be the gelsemium or ऐसे रेमेडी जिसमें drowsiness sleepiness ज्यादा है. But try to understand कि उसमें medication क्या चल रहा है. If any antipsychotic drug चल रहे हैं, antidepressive drug चल रहे हैं, these drugs causes the have the some sedative effect. If the patient is taking anti-allergic, even have the sedative effect. The same thing happens when I was in the medical officer, right? The patient when I am talking with I was talking to patient ऐसे थोड़ा स्टूपरस कंडीशन, स्टूपरस मतलब ड्रॉजी कंडीशन में था. इंटरमिटेंटली जब थोड़ा स्टिमुलेशन देता था तब जगता था, थोड़ी थोड़ी देर बात करता और फिर से सो जाता था, फिर से ड्रॉजी कंडीशन में, स्लीपी कंडीशन में चले जाता था. बोला ये अल्कोहल विड्रॉल है, ये इतना स्लीपी और ये है, तो दिस मस्ट बी अ कैरेक्टरिस्टिक. सो आई नरेट ऑन फोन टू द रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट ऐसे ही कि ये बात ऐसे स्लीपी और ड्रॉजी दिख रहा है एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड सर डिसाइड कि देन गिव द जेल्सिमियम. And when I prescribe gelsemium, there is no output. There is no improvement in the patient. So when I realized that, तब सर ने बताया कि सर ने ये किया कि मैंने और फाइल में देखा कि इसको क्या मेडिसिन चल रहा है, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी इन द अंडर द एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट. तो ही वाज अंडर द sedation. He was under that drug which causes the sedation, and I don't know. Right? So this type of evaluation is very important. और ये गलतियां होती है. If you are aware about it, तो हम इसको गलतियों को नहीं करेंगे. Most of time see that the hypertensive drugs होते हैं, patient बोलते हैं pedal edema है. Most of time the some drugs causes the pedal edema. So it is the medicine induced. So we have to understand even that point of view. Right? So medical history, disease history, drug history, family history, this gives rise to a genetic predisposition. The patient having these diseases, which is the genetically coming to the patient, right? The same disease that grandfather को भी थे, father को भी है, अभी patient को भी हो सकता है. Or sometimes if you understand the family history properly, then you can evaluate कि अगर ये group of symptoms patient में है कि this might going towards this disease because there is a strong family history, so you can investigate accordingly. और अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है और पेशेंट में सिम्टम्स भी उतना कंफर्मेटरी नहीं है, सो गिव द इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली, राइट डाउन द इन्वेस्टिगेशन. फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की और थायराइड की, दो पेशेंट हैविंग सम डिफरेंट इशू लाइक acidity, like a APD like symptoms, but it is our duty to evaluate the diabetes and thyroid. If it is evaluated in the early stage, है ना, then it is easy to handle or easy to treat, right? Then we have to understand the MSC. ये तो प्रिलिमिनरी डाटा और बाकी सब लिखा है हमने. फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो हम डिटेल में देखेंगे. Then most important in psychiatric cases, very important, but in other cases also, as far as the homeopathic consultant is concerned, homeopath is concerned, we should always take the data from accompanied and close person. As far as the psychiatry, मतलब psychiatry में तो बहुत ही important, मतलब essential है. अदर डिसीज या फिजिकल डिसीज में हमने कभी छोड़ दिया तो भी चल जाएगा, बट साइकेट्रिक डिसीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वाइफ आती है तो टेक डाटा फ्रॉम द हस्बैंड आल्सो, कंफर्म द डाटा,
और टेक द एडवांटेज कि उसमें और क्या प्रॉब्लम है, आपको कुछ तो नया मिलेगा या कंफर्मेशन या कुछ जो पेशेंट ने बताया उससे हट के मिलेगा। बराबर, तो अकोम्पनीड पर्सन का ऑब्जर्वेशन क्या है सिजोफ्रेनिया में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमको जो क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं उनसे पूछना ही पड़ता है कि ऐसे क्या हुआ तो पेशेंट इज सिजोफ्रेनिया में गई। इवन इन द एंजाइटी डिसऑर्डर, इवन इन द डिप्रेशन, पेशेंट इज इन द गिल्ट, है ना, वो उस अपनी अपनी धुन में है, डिप्रेशन में है, गिल्ट में ही है। तो इवन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फैमिली मेंबर एंड क्लोज रिलेटिव्स या क्लोज accompanied पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन, ऑल दिस इज लाइक जैसे हम सोशियली पेशेंट को, साइकोलॉजिकली हम जैसे पेशेंट को समझने की कोशिश करते हैं, दैट्स ऑल दिस थिंग इन सेम इन द साइकेट्रिक डायग्नोस्टिक point of view. Psychiatric diagnosis, asset and strength. When you diagnose the case, when you understand the patient, बरोबर है, in management, see, most of time in managing the physical condition like the APD, अल्सर है, पाइल्स है, फिशर है, उसके असेट और स्ट्रेंथ समझने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट उसमें क्या एग्रावेटिंग फैक्टर है उतना हमको समझा तो इट विल हेल्प्स टू गिव द एडवाइस, लाइक एंसिलरी मेजर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पर जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है कि नहीं, या अदर डिसीज में है, या अल्कोहल अल्कोहल ड्रग सब्सटेंस या अल्कोहल डिपेंडेंट है, उसमें ये असेट मतलब उसमें फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जॉब कैसा है ना। When we understand this, we can we can, this helps to give resolution accordingly। बराबर, अगर डिप्रेशन है और पेशेंट अभी कुछ नहीं कर रहा है, we can make him active, we can make him active, go to the friend circle, give some times in the friend, give some times, listen music and all these. If there is a family member are there, we can ask the family member to give some qualitative time with the patient. If patients living alone, residing alone, then we can ask the family member to don't allow the patient to live alone, because accordingly the disease condition we have to make the counseling, or we have to make the the advice to the family member। मतलब अगर डिप्रेशन का केस है, इट इज नॉट विद द एंजाइटी डिसऑर्डर बट इन विद द डिप्रेशन, then tell the family member not to leave the patient alone, because there is always a suicidal ideation because of the strong guilt. It depends on the severity of the mental state, patient may try or patient may goes to a suicidal attempt, and we don't, and this is the crime on the part of the doctor, that if he is not orient the family member accordingly, राइट। अभी एक केस है मेरे पास, उसका बायलैटरल पोस्ट कोविड ही था, बायलैटरल एवियन अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप, हेड ऑफ द फीमर। ग्राफ्टिंग किया, बट अभी भी ग्राफ्टिंग के बाद भी बोन ग्राफ्टिंग किया और अभी भी उसमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, दर्द हो रहा है, लिपिंग गेट है। सो पेशेंट इज फेड अप एंड फ्रस्ट्रेटेड सो मच दैट ही अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट करने गया था, बट देन ही रियलाइज कि मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, एंड ही कम बैक एंड ही नैरेट टू हिज फैमिली मेंबर कि देखो, मैं मेरे को ऐसे सोच आई, मैं गया भी था, अटेम्प्ट भी कर रहा था, वापस आ गया। सो ये दिस ऑलवेज दिस इज नॉट हैपन ना। इफ द पेशेंट हैविंग दैट, ये कि उसने अगर अटेम्प्ट के साथ सक्सेसफुली हो गया तो देन इट इज डिफिकल्ट, है ना। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं तो फैमिली मेंबर ने उसके बाद वो पेशेंट को अकेले ही रहना बंद कर दिया, मतलब कहीं पे भी जाना है, कहाँ पे भी जाना है तो कोई तो भी साथ में चाहिए, सो ऑलवेज समवन इज accompanied with him, right? So this is the thing that we have to understand while dealing with the psychiatric cases। तो असेट और स्ट्रेंथ क्या है ये समझना जरूरी है। ट्रीटमेंट प्लान एंड प्रोग्नोसिस, then depends, clarification of doubt, again
while dealing with such a patient, even in the every patient, we have to make the, you have to ask the patient if there is any doubt, because lot of patient when comes to the homeopathic consultation, comes for the homeopathic consultation, they becomes glad to know that he or she is suffering with this and this disease. अभी हमारे पास भी या मेरे पास भी केसेस आते हैं काफी, दो तीन कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट के पास से, जब हम जब हम उनको उनको क्या प्रॉब्लम है उनकी लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है और उसके कारण आपको ये तकलीफ हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इतने साल, मतलब इतने दिनों से महीनों से मैं तकलीफ गोलियां ले रहा हूँ, तो इतने डॉक्टर को दिखाया पर किसी ने अच्छा बताया नहीं, किसी ने ये नहीं बताया कि आपको एग्जैक्टली ये है कर। So understanding and the clarification of the doubts on the patient's side is very important. When you understand the patient feeling, when you try to listen the patient empathetically, that's need the sensitivity empathetically, then this form the rapport. And in homeopathic case taking, if you want to do the proper case, rapport formation is very important. That means the IPR, interpersonal relationship. There must have the faith in you so that the patient narrate each and everything. Right? So for that, you must be in a ease, patient must be in a ease, make it comfortable, make it clear all the doubts. You must know the, you must have the knowledge about that कि patient कैसे suffering है. Again, it is very important, don't threaten the patient, because lot of nowadays यही चलता है कि जो भी सर्जन होते हैं या बड़े डॉक्टर्स होते हैं, ये काफी इसमें पाया जाया है, नॉट एवरी एवरी केसेस, कि पेशेंट को रियलिटी बताते हैं पर रियलिटी के आगे भी बताते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो, मतलब आपने अगर ऑपरेशन नहीं किया तो बस्ट हो जाएगा, फिर आपके कुछ भी हो सकता है, आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आपके जान को धोखा हो सकता है, तो पेशेंट डर जाता है और पेशेंट आगे प्रोसेस कर लेता है जो डॉक्टर चाहता है. So threatening मतलब don't make the patient panic, है ना, don't make the patient more panic, है ना. तो जो और जैसे और पेशेंट का मेंटल स्टेट कैसे है, कंसिडरिंग दैट वी हैव टू एक्सप्लेन दैट. मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हो कि पेशेंट को एक्सप्लेन करो कि पेशेंट को कैंसर है और आप बोल रहे हो कि पेशेंट आपको कैंसर है और ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बाहर निकलना मुश्किल है. So this is not the duty of the doctor to treat or to explain the disease condition. This is accordingly. The patient state, we have to make the patient optimistic, positive about his or her disease, right? So that they can take care of himself and take the proper medicine, right? Is it clear? All are with me? Yes, sir. Now, in the few minutes back, we talk about the defenses that patient use. In psychiatry, this is very well understanding that psychiatrists must have the understanding about the defenses. Even in homeopath, even for a homeopathic doctor, homeopathic consultant, we must know the defenses that patient use, most common defenses, so that we can make or we can develop the skill that how to handle that defenses. Right? So how the defenses work and how the patient use the defenses, the defense mechanism may disturb, because the defense mechanism disturb the interviewing process. जो आपको स्मूथली प्रोसेस इंटरव्यू लेना है, पेशेंट का डाटा कलेक्ट करना है, वो नहीं हो पाता. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेशेंट यूजिंग अ डिफेंस लाइक intellectualization, like a suppression, like a repression. If the patient using the defense, suppression is again the defense. If the patient don't want to recall the painful event in his or her life, so they stuck there.
or if the patient don't consider the person who is sitting in front is a proper doctor, or he can able to treat me, I don't have the faith, or there is a no rapport formation in the initial period of the case taking, they block their self. Try to understand this. This is very important for the case taking. As a homeopath, they or he or she block himself or herself, and you don't get the any useful information from that patient. So don't, by body language, by your talk, don't do the things where the patient block himself or herself. Emotional block, what I am talking is the emotional block. तो क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है. समटाइम्स वी गेट इरिटेटेड, अरे सब ठीक है. तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या है, right? But we have to understand it skillfully. One is the anticipation. Anticipation is one of the important defense that patient use, where he predicting probable events and planning countermeasures. मतलब दे प्रोजेंटिंग भी ऐसा हो सकता था, वैसे हो सकता था, but this is not reality ना. What we need is the actual feeling, the perception, or actual incidents. So that thing is not important for us, but it is important for, what is important for us, कि patient using the defense like anticipation. Another defense is the humor. जैसे वो केस में बताएं कि हम पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया. समटाइम्स द पेशेंट को बताना नहीं है, तो वो अपने ह्यूमर या बात को ऐसे मजाक पे ले सकता है, हंस सकता है उस बात पे, अगर उसको हाइड करना है. और दिस कुड बी वन वे ऑफ कन्वर्टिंग द एंजाइटी इनटू द कॉमेडी, है ना. उसको अपनी एंजाइटी अगर बाहर निकालना नहीं है, अपना फियर बाहर निकालना नहीं है, तो दिस एंजाइटी कैन बी, पेशेंट कैन बी कन्वर्ट हिज और हर एंजाइटी इनटू द ह्यूमरस थिंग और ह्यूमरस थॉट, या कुछ तो ऐसा बोल देगा जिससे वो वी कैन सी कि द पेशेंट यूजिंग द ह्यूमर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. Then the suppression. What is the suppression? We know suppression of emotion, suppression of जो physical suppression अलग है, ये emotional suppression. Suppression कहाँ होता है, जहाँ पे painful problems रहते हैं और ऐसे incidents रहते हैं वो ज्यादा painful होते हैं, जो patient उसको recall करना नहीं चाहता intentionally, because there is another word called as the repression. बराबर है. सप्रेशन और रिप्रेशन कभी काफी समय हम कंफ्यूज होते हैं, उसको कैसे लेना है, कैसे उसको परसीव करना है. तो सप्रेशन इज द इंटेंशनल ब्लॉकिंग ऑफ रिकॉल. इंटेंशनल ब्लॉकिंग ऑफ रिकॉल. रिकॉल मतलब उसको बाहर निकलना, थॉट प्रोसेस तो बाहर की, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, मुझे ऐसे लगा था. एंड द रिप्रेशन इज द बैनिंग थॉट एंड फीलिंग फ्रॉम रिकॉल. This is the subconscious process where the patient subconsciously ban the thoughts and feeling. This is not the highly intentional. This is the subconscious process where the patient is not want to recall, or there are the lot of painful events you can see where you expect that the patient might be weep, रोएंगी, sad होंगी, depressed होंगी, है ना. बट पेशेंट इज टॉकिंग लाइक जैसे नॉर्मल टॉक होता है वैसे ही टॉक कर रही है, उसको कुछ अफेक्ट ही नहीं हो रहा है और मूड भी चेंज नहीं हो रहा है. So this might be a process that patient undergone the repression, right? Patient undergone the repression. Then the displacement. We can always see this displacement mostly in the female when there is anger. जैसे for example अगर गुस्सा आ गया, बोलते हैं ना, काफी लेडीज बोलते हैं, या कोई भी मेल मेल फीमेल, डॉक्टर साहब गुस्सा आता है, काफी गुस्सा आता है, तो आप क्या करते हो. हमको
हमको इवेल्युएट करना रहता है गुस्से में ये पेशेंट या व्यक्ति क्या करता है, तो हम पूछते हैं क्या करता है, कुछ नहीं, चुप रहती हूँ, फिर क्या होता है वो गुस्से का, डॉक्टर साहब बच्चे को मारती हूँ। So he or she is displacing his or her emotion like anger into some other substitute. This is called the displacement. It is the defense mechanism. It is the defense mechanism, right? So displacement is one. Another is the intellectualization that we talk about the generalization. डॉक्टर साहब अभी लॉस हो गया तो तकलीफ होंगी, ये सब का ये सब कोई तकलीफ होंगी, है ना, मुझे हुआ है ऐसे तो नहीं है. So this block ourselves or case taking. The most important thing is whenever the patient comes to us, we have to orient the patient about the importance of case taking in the initial phase of the case taking, in the starting point. Why we need to take this such a things in a deep way? Why evaluating the person's mind, life space, the craving, aversion? Why it is important for homeopathy to prescribe the homeopathic remedy, that we need to orient to the patient and his relatives. बराबर है कि नहीं? And the way you are asking the question is again important. If you are asking question is in a different manner, they don't understand the intention, then again the case will be spoiled. मतलब वो इम्पथी, वो सिंपथी, वो इमोशंस, वो सेंसिटिविटी सब हम में होना चाहिए, वो स्किल हम में होना चाहिए. लिसनिंग. एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं पालघर में था, मैं तो स्टूडेंट था, एमडी स्टूडेंट, और जो मेडिकल ऑफिसर था वो अल्कोहल विड्रॉल या कुछ केस था, साइकेट्री की केस था, और वो मेडिकल ऑफिसर पूछ रहा था, आई थिंक साइकेट्री का नहीं, चेस्ट या कुछ ब्रोंकियल अस्थमा निमोनिया ऐसे, अनिमोनिया ऐसे कुछ था, क्योंकि मेडिसिन के अंडर में केस था, मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंडर में. तो मेडिकल ऑफिसर पूछ रहा था कौन कौन है घर में, कैसा है, तुम पैसे कितने कमाते हो, तो फिर पैसे कमाते हो तो अपने माँ बाप को देते हो क्या, कि अपने पास ही रखते हो. तो जिस तरह से वो पूछ रहे थे, तो थोड़ी देर बाद हम जब इवेल्युएट करने लगे, दूसरे हमारे डॉक्टर्स रूम में लेपटाइजेशन वगैरह सब कंप्यूटर वगैरह था, तो उसके पिताजी आए, तो तुम मेरे बेटे को ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि वो कितना कमाता है और अपने माँ बाप को देता कि नहीं करके. सो जस्ट लाइक दे आर टेकिंग द ऑब्जेक्शन, कि तुमने ऐसा क्यों पूछा, और किस वे से पूछा, क्यों ऐसे पूछा, तो क्यों पूछा कि वो देता कि नहीं करके, वो पैसा कितना कमाता है करके, और अपने माँ बाप को पालता है कि नहीं, या पैसा देता है कि नहीं. सो सो द वे यू आर टॉकिंग अबाउट टू द पेशेंट इज अगेन द इम्पोर्टेंट. अभी पेशेंट वो थोड़ा इलिटरेट था, दैट्स अगेन इम्पोर्टेंट, कि इलिटरेट है तो कैसे बात करना, लिटरेट है तो कैसे बात करना. दैट्स व्हाई आई एम इन द इनिशियल फेज ऑफ आवर session, the education is again the important, this point. Education again important. Sometimes the patient narrate the education wrongly. They want to hide, कि उनको शर्म लगती है कि बा मैं 8वीं हूँ 10वीं हूँ, तो वो बताते हैं ग्रेजुएट हुए हैं या ऐसे है. अगेन स्किलफुली यू शुड अंडरस्टैंड, अगर ग्रेजुएट है तो आप कोई टर्म्स यूज कर रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रही है, जिस तरह से वो अपने आप को नैरेट कर रही है, डिसीज को नैरेट कर रही है, तो वेदर ही इज एक्चुअली दैट ग्रेजुएट और लिटरेट और नॉट, दैट यू हैव टू इवेल्युएट. पर अगर इलिटरेट है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट केस टेकिंग, राइट. तो जनरलाइजेशन, दैट इज इंटेलेक्चुअल रिप्रेशन, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन. डिनायल. Sometimes the patient goes into the denial of his own illness or other incidences. Denial कि ऐसा हुआ तो आपने तो ये गलती किया. हम जब कन्फ्रंट करते हैं तो पेशेंट डिनायल कर देता, नहीं नहीं नहीं, मेरी कुछ गलती नहीं थी उसमें. सो दे डिनाई, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट हिज और हर मिस्टेक. तो डिनाइल एक ऐसे ही केस आया था पुलगांव के क्लिनिक में, डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स हो गया है ना, एजेड केस था, सीनियर मतलब एजेड पर्सन था, अराउंड 68 और 65 to 68. डॉक्टर साहब पाइल्स है, ऐसे कुछ किसने बताया, ये लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि तुमको तो पाइल्स है करके. तो वो मेरे पास आके मुझे डॉक्टर को बता रहा है कि डॉक्टर साहब पाइल्स है, मुझे थोड़ा कोम या तिथे काहीतरी असं फिलिंग येतं.
तिथे काहीतरी असं फिलिंग येतं, तर मला पाईल्स आहे त्याच्यासाठी औषध द्या, ट्रीटमेंट द्या. लॅट्रिन करायला खूप त्रास होतो, म्हणजे अटकते, इझिली होत नाही, त्रास होतो. इट इज नॉट मच पेनफुल. लॅट्रिन करायला त्रास होतो, इझिली होत नाही, आणि खूप दिवसाचं परेशान आहे. सी, दिस इज द फिजिकल. साइकेट्री में भी डिफरेंट वे से हो सकता है. सो मैंने मेडिसिन दिया, मैं बोला किसी को दिखाया क्या, कुछ हुआ, किसी को दिखाया, किसी ने कुछ बताया, तो नहीं डॉक्टर साहब, ये मैंने वर्धा, जो थोड़ा बड़ी सिटी है, वर्धा सिटी, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे भी बताया, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया. राइट, ऐसे. पर जब मैंने पेशेंट का एग्जामिनेशन किया सेकंड टाइम, जब पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब आराम नहीं है कुछ, क्योंकि मेरा इवेल्युएशन ही गलत था, डायग्नोसिस ही गलत था, आराम नहीं है, तो मैंने पेशेंट का एग्जामिनेशन किया. सी, द एग्जामिनेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट while डीलिंग विद और मैनेजिंग द केस. तो पीआर एग्जामिनेशन किया, तो जो पीआर का पर रेक्टल और एरिया अराउंड द रेक्टम सिग्निफाई दैट दिस पेशेंट हैविंग, वो एरिया ऐसे इस तरह से दिख रहा था कि इसको हैविंग सम डीप पैथोलॉजी इनसाइड. तो मैंने उसको कहा कि जो भी आपके पास वर्धा में गए थे, जो भी आपके पास फाइल होंगी, आपको ऐसी बीमारी है जो तकलीफ वाली है, एंड इट इज नॉट जस्ट द फाइल्स, यू आर नॉट सफरिंग विद द फाइल्स, यू हैव टू ब्रिंग, थोड़ा थोड़ा कड़क शब्द में बताया कि यू हैव टू ब्रिंग द ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ऑल द रिपोर्ट्स, उसके बाद ही मैं ट्रीटमेंट करूंगा. तो जब मैंने ऐसा बोला, और पेशेंट ने दूसरे दिन ही दूसरे दिन ही सब ये लाया, ट्रीटमेंट फाइल, एंड इट इज क्लियरली मेंशन, ही शोन himself to the surgeon, general surgeon. He did the biopsy and there was a CA rectum diagnosed. So it was a case of CA rectum, and the present patient presenting himself that he is suffering with the piles, though he know consciously, and even the family member knows that thing. So the denying or the hiding or secret peoples, or hiding their diseases, condition, or the illnesses, or the other thing, is one of the important differences that we have to understand, and we have to act skillfully so that we can make a proper treatment, right? Manjari Archak, mute yourself. Is it clear? So these are the differences that mostly, there are the other differences also, but these are most common differences that we should be aware about it, so that we can skillfully manage that or come out of it, so that our case taking becomes skillful, or we can take a proper case. And then there is a rationalization. One of the differences, rationalization. यहाँ पे पेशेंट अपना अपनी जस्टिफाई देता है, जैसे कोई कभी हम पूछते हैं ना, क्यों नहीं आए, लेट क्यों आए, है कि नहीं, तो पेशेंट कुछ अपने तर्क वितर्क जो बोलते हैं. तो ये डिसीज के लिए या उसके लाइफ से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटती है, सो इफ द पेशेंट गिविंग द सेल्फ सर्विंग एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन अबाउट देयर बिहेवियर विच इज सोशली एक्सेप्टेबल, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज द रैशनलाइजेशन, है ना, द इंटेलेक्चुअलाइजेशन and the rationalization. These are the two things, right? So this is the how we take the interview in the psychiatric case, but we have to understand deeply the psychiatric disorder, or understanding the status, mental status of the person. Then we have to go with the mental status examination. जैसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वैसे यहाँ पे साइकेट्री में मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है, राइट? दैट वी विल डू इट इन अ proper manners in detail. So the mental state examination is a structured assessment of the patient behavior and his cognitive functioning. It is the monitoring of the patient mental state so that we can come to the proper diagnosis.
The interviewer, that means the doctors, the treating doctors screen the mental status to detect the sign and symptoms of mental disorder, right? With this four assessment, how they assess, जो साइन एंड सिम्टम्स डॉक्टर को मिलते हैं उससे वो एक पर्टिकुलर बता सकता है या बोल सकता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिकल में जाए तो राइट इलियाक फोसा में अगर टेंडरनेस है, रिबाउंड टेंडरनेस पॉजिटिव है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर पॉजिटिव साइन आया और वहां पे पेशेंट अगर कंप्लेंट कर रहा है, सिम्टम है कि नौशिया है, वोमिटिंग है, एपेटाइट थोड़ा लूज हुआ है, लॉस हुआ है, डिमिनिश हुआ है, और एपिगैस्ट्री में अम्बिलिकल से अभी राइट इलियाक फोसा में पेन हो रहा है, देन यू कम टू द कंक्लूजन कि दिस पेशेंट इज मोस्टली सफर्ड विद द अपेंडिसाइटिस। लाइक दैट देर आर द फोर assessing parameters that gives rise to कि ये diagnosis हो सकता है। This is important for assessing the mental MSC. So most important for us is the observation. Second is the conversation. Third is the exploration, and fourth is the testing. Testing has very little role. These three is very important as far as the our case taking is concerned. तो ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व करते हैं ना, जैसे ऑब्जर्वेशन में इट इज ऑब्जर्वेशन में ज्यादातर इसके लिए हमको पेशेंट के कोऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस थिंग इज दैट, क्योंकि अगर हमको कन्वर्सेशन या एक्सप्लोरेशन करना है मोस्टली, कि ये डिटेल में हमको जानना है, तो हमको पेशेंट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। पर ऑब्जर्वेशन कोई भी पेशेंट का वेदर इट इज साइकेट्रिक और नॉन साइकेट्रिक, ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट का कोऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड दिस इज द मोस्ट मतलब रिलायबल भी है और इम्पोर्टेंट। सो दिस स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी वेरी 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 फाइन इन ईच एंड एवरी होम्योपैथ, right? So observation. Second is conversation. When we ask the questions, then patient may giving the answer in a different manner, passively, actively, irrelevant, relevant. So with that you can judge, with this you can judge that कि अगर observation conversation कर रहा है तो patient कुछ ना कुछ बोलेगा, तो उससे हम कुछ तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पेशेंट का स्पीच कैसा है, पेशेंट का थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, कंसंट्रेशन है कि नहीं, मेमोरी कैसे है, इंसाइट कैसा है पेशेंट का, या जजमेंट कैसा है। बराबर है टू सम एक्सटेंट, बट द एक्सप्लोरेशन, द एक्सप्लोरेशन क्या होता है? एक्सप्लोरेशन नीड अ पेशेंट विलिंगनेस टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब हमको डीप आइडिया या डीप थॉट प्रोसेस चाहिए, डिटेल्ड चाहिए उसका डिटेल, कि क्या हुआ था, तकलीफ हुआ वो, तो तकलीफ कैसे शुरू हुआ, है ना, कहाँ गए थे, क्या हुआ लाइफ में, क्या घटना घटी, तो उसके बाद तकलीफ हुआ, आपको क्या लगा, कैसे लगा, ये सब। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर द विलिंगनेस दैट द पेशेंट आपसे उतना बात करते करना चाहिए। तो आपको एक्सप्लोरेशन में पेशेंट का मूड समझेगा, अफेक्ट समझेगा, उसका थिंकिंग पैटर्न समझेगा, फिर उसमें हेलुसिनेशन है क्या, डिलूजन है क्या, ये सब समझेगा। सुसाइडल आइडिएशन है क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल थॉट आपको ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से नहीं समझेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग वी डोंट गेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, दैट फॉर दैट वी नीड अ पेशेंट कोऑपरेशन, राइट? सो सुसाइडल थॉट है क्या, नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुसाइडल थॉट, सुसाइडल आइडिएशंस और सुसाइडल अटेम्प्ट, राइट? देयर आर वीडियोस वी हैव ऑलरेडी। अब ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में these are the very important parameters we have to consider when we going through the mental status examination or the MSc. The most important is try to understand this, the appearance कैसे दिखता है। अभी हमने ये भी देखे हैं कि जो होम्योपैथिक केस टेकिंग है कि फेस कैसा रहता है, या फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, मोटिव टाइप, है ना, उसके हमने टाइप्स भी देखे कि मेंटल है, मोटिव है, तो सोरिक फेस कैसा, साइकोटिक फेस कैसा, राउंडेड है, चबी है। सो दिस इज डिफरेंट in with point of homeopathic perspective, but with respect to psychiatric diagnosis
द अपीयरेंस, बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट। अब ये अपीयरेंस मतलब ये होम्योपैथी में भी हमको हम ऑब्जर्व करते हैं कि वेदर द पेशेंट कमिंग टू यू इज अ वेल ड्रेस, ग्रूमिंग कैसा है, ड्रेस का सेंस कैसा है, कोम्बिंग किया है कि नहीं, हेयर्स कैसे है, हेयर स्टाइल कैसे है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर हेयर इज वेल कोम और नॉट, इट इज scattered, if it is well buttoned shirt or it is not, if shirting is there well है, मतलब जो न्यूरोटिक कंडीशंस होती है, स्पेशली द एंजाइटी डिसऑर्डर या अदर्स डिसीज, उसमें आपको पेशेंट दिखेगा कि वेल ड्रेस है, वेल प्रॉपर है, सब फाइल बराबर से रखा है, तो एंशियस भी होता है तो सब बराबर से करता है। डिप्रेशन में थोड़ा सा आपको दिखेगा कि मूड बराबर नहीं है, उसका सेल्फ केयर बराबर नहीं। और अगर वो सिजोफ्रेनिया लाइक या साइकोटिक डिसीजेस होगा तो सब अस्त व्यस्त है, उसके कपड़े कैसे रहेंगे, बाल कैसे रहेंगे, वो आप पता नहीं, मतलब उसमें काफी चेंजेस दिखेंगे। सो अकॉर्डिंगली जो अपियरेंस है, उसका एटीट्यूड है या बात करने का जो ढंग है, उससे हम एक क्लियर, एक रफली आइडिया ले सकते हैं पेशेंट गोज इनटू कि सच डिसऑर्डर लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर है, कि डिप्रेशन है, कि साइकोटिक डिसऑर्डर है। अगेन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी समझना जरूरी है। वो जो वीडियो बताया था आईसीयू का, उसमें उसमें समझना है, क्योंकि आईसीयू के केसेस में, क्योंकि एकदम अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस में तो ओपीडी में पेशेंट लाएंगे नहीं, पर स्टूपरस कंडीशन है, पेशेंट इज इन द ड्रॉजीनेस, ड्रॉजी है, ऐसा तो सब्सटेंस रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, या अल्कोहल इंड्यूस डिसीज, या अल्कोहल विड्रॉल में जो होता है, या अल्कोहल एब्यूज जो होता है, उसमें मोस्टली वी हैव टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि पेशेंट अगर डिलीरियम में है, डिल्यूजन में है, तो कॉन्शियस, जो कॉन्शियसनेस है, ओरिएंटेशन, ये हो सकता है, ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, पेशेंट में भी डिसओरिएंटेड, राइट। तो ये डिसओरिएंटेशन और हाइटन सेंसिटिविटी, सॉरी इरिटेबिलिटी या हेलुसिनेशन, अगर किसमें दिखेगा, अल्कोहल विड्रॉल में दिखेगा, ड्रग इंड्यूस कंडीशन में दिखेगा, इवन यू कैन सी सच अ डिसओरिएंटेशन इन द हाइपोनाइट्रेमिया। अभी ऐसे नहीं कि डिसओरिएंटेशन है तो आप साइकेट्री उसको ये करो, सोडियम पोटेशियम के इम्बैलेंस से भी ये हो सकता है। सो दैट्स व्हाई द इवन even though you are thinking about the psychiatric disease, also think about the condition like hyponatremia, जहाँ पे सोडियम लेवल कम होता है। दिस पेशेंट इज अगेन, मतलब ये पेशेंट भी ऐसे डिसोरिएंटेशन शो कर सकते हैं, राइट। सो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। ये थिंकिंग, इमोशन, परसेप्शन, थॉट, यहाँ पे मूड और अफेक्ट दिख रहा है ना। दैट्स आई विल एक्सप्लेन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ब्रेन में अगर कुछ पैथोलॉजी हुआ है, उससे भी लेवल ऑफ कोमा में पेशेंट जाता है, हिमोरेज होता है ना, तो वो भी हमको रूल आउट करते आना चाहिए। जो देन अपीयरेंस कैसे रहता है ना, अपीयरेंस, पोस्चर, क्लॉथ, ग्रूमिंग, क्लीनलीनेस है कि नहीं, वेट लॉस हुआ है क्या, कैचिक्सिया है क्या, है ना, जेस्चर्स कैसा है पेशेंट का, एटीट्यूड कैसा है, कोऑपरेटिव है कि नहीं, सिक्रेटिव है क्या, है ना, एक्सप्रेसिव है क्या, सस्पिशियस है क्या, कि हर हर ऐसे सस्पिशियसली इधर उधर देख रहा है, या कुछ अगर डॉक्टर एक्टिविटी कर रहा है तो उसको पेशेंट को लग रहा है कि डॉक्टर मुझे हार्म करने वाला है, या मुझे तकलीफ देने वाला है, या ये लोग मुझे कुछ खिलाने वाले हैं, पिलाने, तो सस्पिशियसनेस that gives rise to some psychotic disorder that indicates towards a psychotic disorder। अब ये स्पीच कैसे रहेगा, स्पीच अरे नॉर्मल स्पीच है कि हास्टी है ना, ज्यादा टॉकेटिव है ना, टॉकेटिव है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्पीच बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्वालिटी मतलब रिलेवेंट है, इरिलेवेंट है ना, या पोवर्टी ऑफ स्पीच है कि जितना बात करो उतना ही कर रहा है, यस और नो में ही जवाब दे रहा। अब जब बात करता है व्हाइल टॉकिंग, सी द लेवल ऑफ, मतलब आई कांटेक्ट, वेदर आई टू आई कांटेक्ट है कि नहीं। If the patient is in the depression, they always looking down, they don't want to see or don't want to make a eye contact। Why this so? Because of the patient is in the guilt। अब ये गिल्ट मतलब क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। गिल्ट मतलब आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ तो क्राइम किया है, कुछ तो गलत किया है,
So here patient reproaching himself. So we have to make out of it. Patient we have to make the out of guilt. तो गिल्ट में है तो आई टू आई कांटेक्ट कम होगा. माइट बी समथिंग कुछ तो किया है. पेशेंट इज इन डूइंग समथिंग विच मेक हिम मोर गिल्टी. तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, आई टू आई कांटेक्ट, है ना. वॉल्यूम ऑफ स्पीच, अगर पेशेंट साइकोटिक डिसीज में है तो इधर उधर देखेगा. आई टू आई कांटेक्ट तो नहीं रहेगा, नीचे भी नहीं देखेगा, बट द how he or she is looking here and there is the not मतलब you can't say कि ये प्रॉपर नहीं है, कि बहुत गड़बड़ वाला है. और कुछ पूछेंगे तो आंसर भी ऐसे इरिलेवेंट देगा, विच इज नॉट रिलेवेंट. उससे आपको लगेगा कि ये इसको इसको मेरा क्वेश्चन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है. या आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब न देते हुए वो अपना ही कंटेंट बताएगा. देयर इज वन केस comes to me where the patient saying कि डॉक्टर साहब आपके पास कोई आया था क्या मेरे जाने के बाद. बहुत सारे लोग जो जहां पे मैं काम करता था ना वहां पे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो मेरे मारने को देख रहे हैं, ऐसा वो हार्म करने की सोच रहे हैं. उनको लगता है कि इसका अच्छा नहीं होना चाहिए, और मैं जहां भी जाता हूँ मेरे पीछे आते हैं और मेरी बुराई करते हैं. आपके पास तो नहीं आया, मैं जाने के बाद मुझे लगता है वो आपको भी मेरे बारे में पूरा बुरा बताएंगे, बुराई करेंगे. बराबर. सो दिस इज द वे द पेशेंट्स टॉकिंग. दिस इज एक्सक्लूसिवली अ डिल्यूजन दैट द पीपल्स, जो लोग हैं उसको, वो लोग उसके बारे में कुछ बुरा फैला रहे हैं. ये डिल्यूजन है उसका. सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द डिल्यूजन. अभी क्या डिल्यूजन है दैट इज डिफरेंट, कि दिस इज डिल्यूजन. डोंट मेक डायरेक्टली कंसिडर इट एज अ रूब्रिक और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, है कि नहीं. फर्स्ट मेक अ डायग्नोसिस कि ये अगर ऐसा ऐसा है तो क्या ये है. Again, in such a cases where the patient narrating like this, we have to confirm with the close friend, or you have to confirm with the close family member. See the rapid speech, अगर fast बात कर रहा है, fast rapid speech, which is mostly seen in the mania and the anxiety disorder. स्पीच में से आपको जेस्चर्स भी थोड़ा सा हरीड एंड वरीड दिख रहा है, जहां पे आपको हैंड के जेस्चर्स भी आपको पेशेंट के ज्यादा दिख रहे हैं. सो दिस इंडिकेट्स द देयर इज एंजाइटी. सो पेशेंट गोइंग टुवर्ड्स द एंजाइटी डिसऑर्डर. If the speech center in the brain is damaged, स्पीच जो एरिया है ब्रेन का, तो वहां पे भी अफेजिया आएगा. तो दिस इज द ब्रेन लीजन है, तो पैथोलॉजिकल, you can consider it is a pathological. It needs assessment or investigation in the different way, जैसे CT scan करना है, MRI करना है, like that. Then the parameter we have to assess is the thinking process of the person. This is the conscious cognitive process that can happen independently of sensory stimulation. मतलब कुछ नहीं ये करते हुए कि पेशेंट कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है. Some patient having the fast thought process, बहुत थॉट ऐसे घूमते रहते, चलते रहते दिमाग में, बट उसका जो बात करना होता है, जो टॉक होता है, उसका नॉर्मल रेट होता है या स्लो होता है. तो मिसमैच, सी द मिसमैच. थिंकिंग जो है, थिंकिंग जो थॉट चल रहे हैं वो काफी फास्ट है, ए भी वो भी वैसे भी वैसे, पर वो जो सोच रहा बात कर रहा है वो नॉर्मल है या स्लो है. So there is a mismatch between the thinking and the talking. This is mostly seen in the anxiety disorder, psychotic disorder, and in the hypomania. Right? Anxiety disorder, psychotic disorder, and the hypomania, thinking. Now the important part is the emotion. In emotion, there is a mood and affect. This is important part while evaluating the each and every case of the psychiatry. तो चाहे एंजाइटी हो या सिजोफ्रेनिया हो या mood disorder or like a depression. See, what is the mood? The mood refers to the predominant and longer lasting quality of experience emotion, which lasts longer.
फॉर एग्जाम्पल जो वीडियो दिखाया था लेडी का, उसका मूड कैसे था? She was in the long lasting grief where there was a continued sadness was there. So the mood is how the patient subjectively tell you they are feeling. मतलब अंदर ये subjectively feeling है mood, जो ऑब्जेक्टिवली भी फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप उसको रीड कर सकते हो, पर मूड इज द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कि हाउ आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, फीलिंग cheerful, feeling sad, feeling low. So always we ask the patient ये हाउ यू फील, आपका मूड कैसे है, या आपका मूड कैसे रहता है, ये हम पूछते हैं ना कि मूड कैसे रहता है आपका, है ना? सो हाउ यू आर फीलिंग, हाउ इज योर मूड, सो दिस इज द मूड अफेक्ट। अब ये अफेक्ट क्या है? क्या अफेक्ट? अफेक्ट इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिवली यू ऑब्जर्व इन अ पेशेंट, जो हम दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज द इमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, immediate expressions of the emotions, which is you can which is चेंज भी हो सकता है। ये अफेक्ट जो है चेंज हो सकता है, ये लेबाइल होता है ना? इट इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द इंटरनल थॉट प्रोसेस, राइट? जैसे मैनिया में थॉट चेंज होता है तो आपको स्माइल भी दिख सकता है, चेयरफुल भी दिख सकता है, सैड भी दिख सकता है ना? सो इट द कॉन्ग्रुएंसी between the mood and affect we have to understand, or appropriateness of the patient affect to the current situation is again important, बराबर है? सो appropriate of the patient affect मतलब वो हंस रहा है पर उसमें सी sometimes the patient is in the depression who having the long term sadness, low mood, and when the patient narrates some question asked maybe जैसे वो पेशेंट में भी जो राधिका दे जो पेशेंट था डिप्रेशन का, जो मैंने बताया वीडियो शुरुआत में, आई एम ऑल्सो इन दैट, यू कैन सी वीडियो नहीं है क्या? पेशेंट सैड थ्रू आउट दिख रहे विच इज लॉन्ग लास्टिंग इमोशन, बट इन बिटवीन ऐसा पेशेंट को थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे तो मतलब और कुछ तकलीफ है आपको? हंस रही है। बीपी, शुगर, थायराइड या और कुछ? थायराइड नहीं है, आर्थराइटिस है घुटनों में, आर्थराइटिस है, और बीपी की टेबलेट लेती हूँ। ये हम पूरा देखेंगे तो वो समय लगेगा जब थोड़ा है पर अभी दवा नहीं शुरू की। सो दो देयर इज अ ये तो अफेक्ट मतलब एक्सटर्नल जो पोस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन से जो हमको इमोशंस दिखते हैं, है ना, वो है, दैट इज द अफेक्ट। सो मोस्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन्फ्लुएंस द मूड एंड अफेक्ट। सो इन मैनिया and some substance related disorder, the mood is quite elative mood, or elation is very dominantly you can see in the patient, elation, cheerful, happiness in the mania। अभी मैनिया में भी दो मैनिया वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, मैनिया में इलेशन या cheerfulness you can see, it is long lasting mood, we can call it as a long lasting emotion, that is the mood। in depression you can see the sadness and guilt which is very prominent। in eating disorder you can see the disgust is prominent, and in anxiety disorder you can see the anxiousness is the prevalent emotions, right? So these prevalent emotions we have to evaluate so that we can consider the psychiatric diagnosis। you are diagnosing the patient as a depressive और डिप्रेशन में है, और उसका मूड आप असेस नहीं कर रहे हो, उसके इमोशन समझ नहीं रहे हो, ये नहीं समझ रहे हो कि वो स्लीप कैसा है, स्लीप पैटर्न कैसा है, उसका वर्क पैटर्न कैसा है, काम में मन लग रहा है कि नहीं, इंजॉय कर रहा है कि नहीं, है ना? एक हम एमएससी डिप्रेशन का लास्ट में लेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी डू द
so that we can understand the MSc in particular diagnosis, right? Hmm. Then there is a perception in psychiatric diagnosis. If there is a altered perception, that means altered hallucination. The altered perception matlab delusion, hallucination, or illusion, right? Then that gives rise to some different psychiatric diagnostic assessment or evaluation. Now what is the illusion? This basic जो टर्म्स है उसकी उसका मीनिंग या समझना बहुत जरूरी है. Always there is some confusions between whether there is a illusion or hallucination. Illusion is misperception of the actual stimuli. The perception is there, but there is a misperception of the actual stimuli. और देर वी कैन कॉल दिस एज अ मिस इंटरप्रिटेशन. जैसे हम बोलते हैं ना कि वो है कोई ऑब्जेक्ट पर उसको मिस इंटरप्रिट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बोलता है कि वह बातें तो हो रही है पर फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई रस्सी है या कोई ऑब्जेक्ट है और पेशेंट उसको कुछ पर्टिकुलर ये समझ रहा है कि नहीं वहां पे सांप ही है, वहां पे ऐसा कुछ ये है कि जो मुझे मुझे कोई इंजर्ड करेगा या तकलीफ देगा, इस तरह से. जहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो निर्जीव है, पैसिव है, वो कुछ नहीं कर सकता. So this is the error of perception. Hallucination, there is a absence of sensory stimuli. यहाँ पे सेंसरी स्टिमुलाई रहता है पर पेशेंट उसको रॉन्गली परसीव करता है. दिस इज कॉल्ड इल्यूजन. बट इन हेलुसिनेशन स्टिमुलाई रहता है. सॉरी, इन हेलुसिनेशन देयर इज अ नो स्टिमुलाई. द परसेप्शन होता है बट इन अब्सेंस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई. लाइक ऑडिटरी या विजुअल हेलुसिनेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे पेशेंट को लगता है कि ये दीवार के पीछे ऐसे लग रहा है कि कोई तो भी दो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं. कॉन्स्टेंटली वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर वो पेशेंट बोलता है और कोई अगर वहां जाके देखता है कि कौन है जो बात कर रहा है, जो पेशेंट को सुनाई दे रहा है, तो देर इज नो वन इज देयर. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन where there is no actual object or stimuli is there but patient perceive it, right? Sometimes there is a visual hallucination where the patient see the images, patient see certain things which is not actually present, right? So the perception problem, hallucination and illusion. The thought content, again important. Thought क्या है? How the patient का thinking में इसमें आएगा thought content, whether it is a delusion है ना, जिसको हम बोलते हैं कि फॉल्स बिलीफ, या देयर इज अ सुसाइडल थॉट. Delusion, all may knows this terminology very well because most of time we use the most of the rubrics related to the delusion. But actual delusion in psychiatry is the different. We make it is a in a different, in homeopathic perspective थोड़ा सा अलग है. but यहाँ delusion मतलब false belief, unshakable belief are held despite there is a evidence against it, and despite the fact that there is a no logical support for it. In spite of that the patient thinking that कि this is the thing. मतलब वो पेशेंट को अगर उस बाजू में या वो साइड में लेके गए और उसको दिखाए कि यहाँ तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आपके बारे में बातें कर रहे हैं दो लोग. तो इन स्पाइट ऑफ दैट पेशेंट नॉट एक्सेप्ट that is the fix, है ना. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द डिल्यूजन. तो डिफरेंट डिफरेंट डिल्यूजन्स होते हैं. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थॉट कंटेंट है सुसाइडल थॉट that we have to evaluate, and very very important to evaluate in each and every case of the psychiatry. बराबर है. मोस्टली ये जो सुसाइडल थॉट होता है ये ज्यादातर पाया जाता है डिप्रेशन एंड इवन द मैनिया एंड द सिजोफ्रेनिया. Abhi, which see the interesting the finding that
is we discussing here. As far as the sex is concerned, the women are more likely to be attempter for suicide. It is called attempter. मतलब attempt करते हैं, actual suicide नहीं करते. And men's are more likely to be committers. Commit मतलब commit कर देते हैं, suicide कर देते हैं. तो वुमेन्स आर मोर ऑफ अटेम्प्टर. इट इज ये स्टडी में पाया जाता है, स्टडी का कंक्लूजन है. एज, as far as the suicide is concerned, highest rate of age of highest rate of suicide is the in teenagers and in the elderly, right? In depression, 15% of depression patient commit suicide, right? Previous attempt, 10% of previous attempter finally succeeded. मतलब जो होता है ना, जिसने पहली बार किया है वो दोबारा करके फुल्ली वो कमिट कर सकता है. इट इज ऐसे 10% है रफली. If there is a no social support, then patient may easily land up into the suicidal thought and commit the suicide. If there is a lack of support or social support, family support, that's why in psychiatric cases, family support, support of close ones, support of spouse is very, very, very important. राइट. फीलिंग लोनली, एक वीडियो अभी चल रहा था जो एम्स के, दिल्ली एम्स के डॉक्टर है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, और उन्होंने, उनका एक फाइंडिंग है अभी, काफी लेक्चर्स में जब माइंड एंड बॉडी का जो सेशन या लेक्चर उन्होंने दिया था, माइंड एंड बॉडी पे वर्कशॉप चला था नागपुर के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में. वो मैंने अटेंड किया था काफी महीनों पहले. वहां पे भी वो सर आए थे जो कार्डियोलॉजिस्ट हु इज इन कांटेक्ट विद द ब्रह्म कुमारीज. वहां पे भी उन्होंने बताया कि दैट वन पेशेंट हु इज द यंग comes to my hospital with a severe massive cardiac attack, right? एंड कैसे तो भी वो उससे बाहर निकला. और जब वो कार्डियोलॉजिस्ट ने हिस्ट्री ली, है ना, जबकि ये कोई लेता नहीं है ना, फिजिकल सिम्टम्स है, अब डायग्नोसिस पे हम उस कार्डियोलॉजिस्ट देते हैं. उन्होंने हिस्ट्री तो उनके देखी कि रिसेंटली मैरिड हुआ है पर उनकी बनती नहीं है, वाइफ चली गई छोड़ के, और वो डाइवोर्स चाहती है. एंड पेशेंट इज गोस इनटू द मासिव हार्ट अरेस्ट और कार्डियक हार्ट अटैक. तो जब उन्होंने उसके वाइफ से कंडीशन रखी कि आप सिर्फ 10 दिन 15 दिन रोज मिलो, रोज उससे बात करो, रोज पैर से बात करो, रोज दोनों थोड़ा घूमने जाओ. और 15 दिन बाद ऐसे फाइंडिंग में आया कि उसका जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो गया, और उनके रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए, और उसके कारण उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई. तो कंक्लूजन उसमें ये था कि इमोशनल डिस्टरबेंस इज द इम्पोर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर इन कॉजिंग द फिजिकल डिसीज. एंड दैट हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं पहले से, दो मतलब 250 साल पहले से हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हनीमन जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि द इमोशनल कॉज इज द मेन कॉज टू कॉज द डिसीज कंडीशन. बराबर है कि नहीं? सो हमने ये प्रूव करके दिखाना चाहिए. उन्होंने, देखिए उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने वीडियो दिखाया, उन्होंने समझा. तो वी मस्ट बी गो साइंटिफिकली सो दैट वी कैन प्रूव वर्ल्ड वाइड कि द emotions or the cause is mostly is in the mind. That's why we have to evaluate that and we have to treat that condition. मतलब कंफ्लिक्ट रहो या लोनलीनेस फील रहो या उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहो, दैट वी इवैल्यूएट इन ईच एंड एवरी केस, है ना. मतलब हार्ट में है, हार्ट अटैक आया तो उसमें है, तो सभी में होता है ना, फिजिकल डिसीज में, ईच एंड एवरी डिसीजेस, राइट. तो इवन द नो स्पाउस इंक्रीज द सुसाइडल रिस्क. मतलब स्पाउस छोड़ के चली गई या स्पाउस है ही नहीं, मतलब लाइफ पार्टनर वाइफ है या हस्बैंड है, तो दिस इंक्रीज द सुसाइडल रिस्क इन द पेशेंट और इन द पर्सन. Sickness, the chronic sickness, again it is very important. The patient suffered with the chronic sickness. If the patients know that my sickness is not going to treat, not going to manage, I am not coming out of it,
When the patient goes frustrated, going frustrated and despair, this may increase the chance of suicide. I have seen the cases like that. कि even एक case था कि oh so bad itching in the whole body, है ना, खुजली खुजली। काफी साल पुराना केस था, यहाँ अंतर भारती में देखा था, और कुछ मतलब वो सीनियर ट्रीट कर रहे थे। कुछ महीने बाद मैं जब इन्वेस्टिगेट किया, वो केस मेरे रिलेटिव्स मतलब दूर के रिलेटिव थे, उन्होंने भेजा था। तो मैंने जब पूछा तो पता चला कि पेशेंट ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। तो क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग इलनेस में इंक्रीज द रिस्क ऑफ सुसाइड, right? So we must be aware about it so that we can evaluate and give the advice accordingly to the patient and to the family member. Now the cognition, it is the process of thinking, learning and understanding the thing. And the doctor must judge the cognition by patient's ability to comprehend the question and express the response. मतलब जब हम पूछते हैं कुछ तो कैसे उसको परसीव करके कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका थिंकिंग पैटर्न हमको उसमें से समझता है कि कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। देन वी हैव टू डिसाइड द कोग्निशन ऑफ द पेशेंट। The cognitive ability of the patient we can understand by asking the patient the date, the location, where they are, their name, whether it is alert or oriented, and it again documented as a alertness or orientation about some place, person, and surrounding. This gives the overall rough idea about the cognition. बराबर है क्या? This is important if you are concerned about the delirium or the acute confusional state. Because in delirium, cognitive process is hampered. The orientation, time, place, person ये भी disturb हो जाता है या hampered हो जाता है. In confusional state, acute confusional state, in acute psychosis, and in the delirium state, disease. Now the important point or parameter is while assessing the MSA is the insight. अभी ये इंसाइट है कि नहीं कैसे समझेगा? इंसाइट मतलब अपने तकलीफ या तकलीफ के बारे में अवेयरनेस होना। How we assess the insight, then ask the patient to what extent he or she feels sick or ill. मतलब अपने बीमारी के बारे में क्या लगता है, और मतलब वो बीमार है ये उसको लगता है कि नहीं। Because some patient don't have the insight about their illness, don't understand that I'm suffering from this severe disease, मतलब delusion है, hallucination है ना? तो insight might be poor, insight might be fair, और insight might be good. ये insight से भी हमको पता चलता है कि patient is suffered with this or that. For example, if the patient having schizophrenia, patient having the mania, patient having dementia, or patient having substance related disorder, such type of patient may deny being sick. वो डिनाई करेंगे मुझे ऐसा कुछ है करके, या आप ऐसे हम अगर सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को बोलेंगे कि ये तू पागल है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तेरे दिमाग का वहम है, तो दूसरे बार आएगा ही नहीं पेशेंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनिया मैड पेशेंट या सिजोफ्रेनिक पेशेंट या साइकेट्रिक जो केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन, अगर ये स्पेशली सिजोफ्रेनिया डिलूजन्स, जो डिलूजन के पेशेंट भी आते हैं, जो मैंने बताया कि वो पेशेंट आता है तो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि भाई ये लोग मुझे सता रहे हैं, ये मेरे पीछे आते हैं, सब लोगों को मेरे बारे में भड़का रहे हैं। अगर ये बोलेंगे आपकी ये आपका वहम है, ये सब फालतू है, ऐसा वैसा, तो बोलेंगे डॉक्टर ही फालतू है, डॉक्टर ही पागल है, मेरे को समझ ही नहीं रहा है। नेवर नेवर say like that. Try to understand the patient disorder and manage according. अगर डिलूजन और सिजोफ्रेनिया केस है, डिलूजन है, और आप ये बोलेंगे कि ये आपका भ्रम है, इट इज नॉट द वे टू ट्रीट। मतलब आपको लगता है कि वो भ्रम चले जाएगा और भ्रम बढ़ेगा कि डॉक्टर पागल है।
इट इज द रियलिटी। ऐसे ही काफी केसेस में अभी देखा है, तो मैं भी सीख गया हूँ कि पेशेंट को एंजाइटी रिलेटेड है, सोमेटाइजेशन होता है, एक डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसीज होता है, सोमेटाइजेशन होता है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, हाइपोकोंड्रियासिस होता है। तो पेशेंट, अरे ये तकलीफ हो रहा है, वो तकलीफ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। पेशेंट इतनी बड़ी फाइल लेके आता है, हम असेस करते हैं। अगर लास्ट में अगर आपने ये बोल दिया कि ये आपको कुछ भी नहीं है, ये आपका वहम है, आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, ये आपका वहम है, कुछ बीमारी नहीं है, सब ठीक है। पेशेंट बोलेगा मेरे को तो तकलीफ हो रही है ना, ये डॉक्टर कैसा है कि ये समझ नहीं रहा है मुझे। सो डोंट डायरेक्टली डिनाई। आपको पता है कि ये साइकोलॉजिकल है, फिर भी आप बताइए मत स्ट्रेट फॉरवर्डली कि ये आपको मानसिक बीमारी है करके। जो वर्ड्स आप चूज करते हैं उसको बहुत डिलाइटली और प्रिसाइजली चूज कीजिए, अगर आपको पेशेंट को लॉस नहीं करना है। नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम इट इज हैपन कि हम ऐसा बोल देते हैं, बहुत सच बोल देते हैं या बहुत ज्यादा सच बोल देते हैं, तो पेशेंट हम लॉस कर सकते हैं। पेशेंट को हमको डायरेक्टली वैसे नहीं बोलना है, हमको स्किलफुली ऐसे समझाना है कि आपको क्या है करके, और पॉजिटिवली उनको समझाना है कि ये आपको ठीक हो सकता है। हम अगर ये बोलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, हार्ट का कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, वहम है, वहम है, तो पेशेंट डॉक्टर चेंज कर देगा, आपको मेडिसिन चेंज करने का चांस ही नहीं मिलेगा। दिस इज द फैक्ट, राइट? तो इंसाइट अबाउट द इलनेस ऑफ पेशेंट, पेशेंट में एक्नॉलेज दैट ही और शी नीड्स हेल्प बट समटाइम्स डिनाई बीइंग सिक, कि उसे कुछ है ये डिनाई करता है। दो, वो बोलेगा कि ट्रीटमेंट चाहिए, मैं मेडिसिन देता हूँ, लेगा वो मेडिसिन, बट दे डिनाई क्या, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस। तो इनसाइट, so these parameters are very important to understand the MSE, which is called as the mental status examination, to understand the psychiatric disorder, right? So it is the around 450, एक शॉर्ट में, इफ यू आर परमिट, ये डिप्रेशन में कैसा एमएससी हो सकता है ना? डिप्रेशन में आई टू आई कांटेक्ट देखना, पहले अपीयरेंस कैसे रहता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है, बिहेवियर एटीट्यूड कैसे रहता है, साइकोमोटर रिटार्डेशन रहता है क्या, वो देखना है। डिप्रेशन में साइकोमोटर रिटार्डेशन हो सकता है, लाइक एंजाइटी में साइकोमोटर एजिटेशन होता है, ये मोटर एक्टिविटी है ना? जैसे एंजाइटी में आपको एक्टिविटी दिखेंगे, डिप्रेशन में ऐसा सुस्त दिखेगा पेशेंट। तो साइकोमोटर जो ये है, रिटार्डेशन दिखेगा, एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी लेस दिखेंगे इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में आज द क्वेश्चन इफ यू फील, और इन एवरी हाउ यू फील, आज द क्वेश्चन लाइक हाउ यू फील। तो ये फीलिंग से आपको ये समझेगा कि आपका मूड कैसा है, तो आप देखेंगे कि मूड और अफेक्ट कैसा है पेशेंट का। और आपका जो मूड होता है और आप जैसे ही तकलीफ है आपको, उससे आपके डेली एक्टिविटी में आपको कैसे, आप कैसे मैनेज करते हो, या डेली एक्टिविटी आप कैसे करते हो, ये क्वेश्चन पूछिए। देन द पेशेंट्स नैरेट दैट आई हैव लॉस्ट द इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट इन एक्टिविटी प्रीवियसली परसीव एज अ प्लीजरेबल। मतलब जो पहले में मुझे खुशी मिलती है वो एक्टिविटी में अभी बिल्कुल खुशी नहीं मिलती, और वो करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। दिस इज कॉल्ड एज द अनहेडोनिया, anhedonia, and this is the characteristic feature of the depression. This is called core feature of depression. एंड पेशेंट नैरेट, आगे बोलेंगे कि डॉक्टर साहब बस मैं रोते रहती हूँ, आई फील वेरी फटीग, बहुत कमजोरी लगती है, थकान महसूस होती है, कुछ भी मोटिवेशन नहीं लगता, कुछ भी नई चीज करने की इच्छा नहीं होती। These are the common feature of depression. Then explore the sleeping pattern of the patient in the depression. Sleeping pattern of depression. The depressive patient may have the early morning waking, सुबह जल्दी उठ जाना, आंख खुल जाना, फिर नींद नहीं लगना। माइट बी पेशेंट हैविंग द इंसोम्निया, और माइट बी पेशेंट हैव हाइपरसोम्निया, स्लीपी ड्रॉजी फील होगा, या इंसोम्निया होगा, या अर्ली वेकिंग। ऑल दीज आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू डिप्रेशन।
देन आगे आपको पूछना है एक्सप्लोर द फीलिंग और असेस द फीलिंग ऑफ गिल्ट और वर्थफुलनेस इफ यू आर कंसिडरिंग द डिप्रेशन लाइक सिम्टम। अगर उसको कंफर्म करना है तो आप ये एक्सप्लोर करो कि गिल्ट है क्या पेशेंट में, देन ही बोलेगा कि गिल्ट कैसा है करके, गिल्ट किस वजह से है, कैसा है, वो एक्सप्लोर कीजिए। देन एक्सप्लोर द ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ईटिंग हैबिट, तो डिप्रेशन में लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। सम सब्सटेंस जैसे अल्कोहल वगैरह लेते हो क्या, ड्रग्स लेते हो क्या, ये भी आपको पूछना है। अगेन देन आस्क डायरेक्टली अबाउट द थॉट ऑफ द सेल्फ हार्म एंड इंक्लूडिंग द सुसाइड। ये पेशेंट को अपने को डायरेक्टली पूछना है कि इज देयर एनी थॉट, ऐसे विचार आते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको खुद को कुछ हार्म करना चाहिए या सुसाइड करना चाहिए। अगर केस में पेशेंट नहीं बताता है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली, बराबर है, बिकॉज दिस इज द असेसमेंट फॉर साइकेट्रिक डायग्नोसिस, नॉट फॉर द पेशेंट अंडरस्टैंड। तो ये आप डायरेक्टली अगर इवेल्युएट नहीं होता है तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। देन यू कैन आस्क अबाउट द थॉट परसेप्शन और थॉट कंटेंट, जैसे डिल्यूजन है क्या, हेलुसिनेशन है क्या, या इल्यूजन्स है क्या, लाइक दैट। देन यू कैन आस्क अबाउट द ये परसेप्शन कैसा है, कोग्निशन कैसा है, जैसे ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, इसका इंसाइट एंड जजमेंट कैसा है। डिप्रेशन में इंसाइट एंड जजमेंट पार्शियल इंसाइट रहता है उसके इलनेस के प्रति, और जजमेंट इम्पेयर्ड होता है। रिस्क क्या होता है इसमें, इसमें सुसाइडल आइडिएशन होता है और रिस्क ऑफ सेल्फ निग्लेक्ट, सेल्फ केयर नहीं होता है इसमें। थॉट में ज्यादातर जो थॉट्स होते हैं, थॉट कंटेंट जो बोलते हैं डिप्रेशन में, वो ज्यादातर थॉट गिल्ट के होते हैं, है ना, बर्डनसम थॉट रहते हैं और हेल्पलेसनेस का फीलिंग रहता है। तो थॉट कंटेंट में गिल्ट के थॉट, बर्डनसम फीलिंग एंड हेल्पलेसनेस, ये देखेंगे डिप्रेशन में। अभी ये मूड कैसा है, अभी शुरुआत में बताया था ना मूड, तो ये लो मूड दिखेगा, ब्लंटेड अफेक्ट दिखेगा, अनहेडोनिया दिखेंगे। अनहेडोनिया मीन्स इंडिफरेंस फीलिंग, आप जैसे बोलेंगे कि पहले प्लीजर लगता था अभी नहीं लगता। सो दैट दिस वी हैव टू इवेल्युएट। तो डिप्रेशन में हमको ऐसा सब दिखेगा, सो वी कैन कंक्लूड कि इसको डिप्रेशन है। जिस बार पेशेंट कभी कभी बोलता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत डिप्रेशन फील होता है, और हम डायग्नोस कर देते हैं पेशेंट इज सफर्ड विद द डिप्रेशन। हम सब असिस्ट करो, स्लीप पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, थॉट कंटेंट, मूड कैसा है उसका, और जब बात भी कर रहे हैं तो उसका अफेक्ट कैसे है, मूड से रिलेटेड कॉन्ग्रुएंट है क्या, अप्रोप्रिएटनेस है क्या थॉट और अफेक्ट में, दैट ऑल नीड्स टू बी, अपीयरेंस कैसे है, दैट नीड्स टू बी असेस। इसके ही हम एमएससी बोलते हैं। देन ओनली यू कैन कम टू द डायग्नोसिस कि भाई इसको डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसको सिजोफ्रेनिया है, इसको ओसीडी है, इसमें ही सफर्ड विद द पैनिक अटैक, लाइक दैट, राइट। सो दिस इज द my attempt to explain you that how the MSc or how the we have to approach the psychiatric cases. So we will, from the next session we see the cases so that we can understand each and every case in the deeper manner, है ना। जो भी है वीडियो केस रह सकता है, उसका आपको असेसमेंट करना है। एमएससी भी कर सकते हैं, हर केस में हम इतना डिटेल एमएससी नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली डायग्नोसिस बताऊंगा या वीडियो पर से आपको उसको असेस करना है, राइट। बी कॉन्शियस एंड बी अलर्ट सो दैट हम each and every case gives rise to lot of things, है ना। तो ईच एंड एवरी मेंबर्स ने अटेंड करना है, क्योंकि हाँ कीप इन माइंड, अगर मैं केसेस में आगे जितने भी रहेंगे सब केसेस रहेंगे, उसमें अगर कोई पेशेंट का वीडियो डिस्प्ले करता हूँ या बताता हूँ, सो ये जो मैं रिकॉर्डिंग आपको शो करता हूँ उसमें वीडियो नहीं रहेगा। फॉर द सेक ऑफ पेशेंट प्राइवेसी I will delete the video part of the in the recording in the whole session when we provide you the recorded session। तो फिर आप बोलना नहीं कि बस सर ये तो ठीक नहीं है करके, बिकॉज आई हैव टू मेंटेन द प्राइवेसी। क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो एकदम ये कंसेंट लेके नहीं बनाते कि हाँ हाँ मैं सबको दिखाऊंगा, और नो वन इज रेडी।
to give the consent about it. So this is for the educational purpose, for learning purpose. So try कि सब लोग अटेंड करें. बाकी जो बाकी सब है रिकॉर्डिंग, हो सकता है आपको वॉइस या जो वॉइस रिकॉर्डिंग होता है वो आपको साथ में पेशेंट का देंगे, ऐसे वीडियो नहीं रहेगा. या हो सकता है कि मास्किंग करेंगे, ऐसे भी हो सकता है, टू हाइड द फेस और आइडेंटिटी, राइट. So here we completed the whole case taking part, homeopathic case taking and the psychiatric case taking. ये ईटिंग डिसऑर्डर में कैसे रहता है, पेशेंट डोंट वांट टू ईट. इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा इज द डिसऑर्डर वेयर पेशेंट डेवलप द डिस्गस्ट फॉर फूड. सो यहाँ पे जो फिनोमिना काम करता है डिस्गस्ट, जैसे डिप्रेशन में गिल्ट काम करता है. So anorexia nervosa, you have seen this is a psychiatric condition where patient don't want to eat. Might be there is a fear of becoming something, मतलब वो फैट होने वाली है उसको, ये एक डिल्यूजन्स होता है कि मैं मोटी हो रही हूँ. तो काफी केसेस में हम देखते हैं कि पेशेंट इज लीन एंड थिन एंड पेशेंट बोलती है कि नहीं 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 मैं मुझे खाना नहीं है, इतना सा खाएंगी या उसको डर लगेगा. शी और दे डेवलप द डिस्गस्ट अबाउट द ईटिंग or disgust about the meal or food. So anorexia nervosa, eating disorder. So thank you very much for attending the session.